semi-scavenging and intensive system of production in India. And particularly the major population comprise of Indian pigs which are reared under free range scavenging system with little or no input. Scavenging system मतलब ये फ्री रेंज में पिग्स, जो देसी पिग है आपको देखेंगे वो दिन भर घूमते हैं और जो भी वेस्ट अवेलेबल है and they are eating that waste for their nutrient utilization, and that system is prevailing in our country and it is called scavenging system. और उसमें scavenging system में whatever they are getting, kitchen waste, other waste, they are eating, and there is no input regarding feed in scavenging system. Another system is indigenous and crossbred pigs are reared under semi-intensive system where they are allowed to scavenge for whole day and receive household, kitchen and hotel waste, rice bran, wheat bran and broken wheat dalia after they return. जहां थोड़ी सी भी अच्छी फार्मिंग हो रही है वहां आप देखेंगे, पर्टिकुलरली आप पिग फार्मिंग देखेंगे इन इंडिया, इट इज इन नॉर्थ ईस्ट एरिया में आप देखेंगे, सिक्किम में, मणिपुर है और मिजोरम है, यहाँ आप देखेंगे, और बंगाल ऑल्सो, तो वहाँ पिग प्रोडक्शन अच्छा है। यूपी में भी बहुत अच्छा है पिग प्रोडक्शन एंड बिहार में भी अच्छा है, और केरला में और गोवा the pigs production is very good. They are rearing pigs for meat production. तो जहाँ थोड़ी भी साइंटिफिक फीडिंग है वहाँ सेमी इंटेंसिव सिस्टम है, और आजकल अंडर इंटेंसिव सिस्टम pigs of exotic breed, allied crossbred and small breeds are reared with concentrated feeds, hotel or kitchen waste, cereal byproduct, vegetable product, wastage, root crops like boiled sweet potatoes, rhizome etc. आजकल क्या हो रहा है, पिग फार्मिंग को बहुत ही वो दिया जा रहा है, they are giving more emphasize, particularly अगर आप नॉर्थ में जाइए, हरियाणा में, पंजाब में, वहाँ कई डेयरीज बंद हो रही हैं, तो वहां दो चीजें स्टार्ट हो रही है हरियाणा पंजाब में, ये डेयरी को बंद करके दे आर गोइंग फॉर फिश प्रोडक्शन एंड पिग प्रोडक्शन। आजकल पिग प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा इंटेंसिव, एक एक फॉर्म में 40-40, 50-50 हजार पिग्स, क्रॉसब्रेड पिग्स, और ये दो प्रकार के क्रॉसब्रेड है, एक ये लैंड रेस और या व्हाइट यॉर्कशायर क्रॉसेस है, या फिर ये प्योर लैंड रेस और व्हाइट यॉर्कशायर है। So there are crosses between Deshi and Yorkshire, particularly large Yorkshire, white Yorkshire and land race, तो और या फिर प्योर है, तो ये इंटेंसिव सिस्टम है जहाँ की they are not allowed to scavenge and they are only kept in farm and they are provided with the concentrate mixture only for their feeding. So they are called, this system is called intensive system. Good remunerative price for the pork in certain places of India. Live pigs have been triggered organized intensive farming, यानी मैंने आपको बताया intensive farming आजकल स्टार्ट हो गई है, and you will find many pig farm now. अगर आप कई जगह जाएंगे, particularly अगर आप I was in 3.5 years in Bangalore, you will बैंगलोर के साथ आप जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके आसपास बहुत सारे पिग फार्म आपको मिलेंगे। So pig rearing, it is coming out like anything since last 10 years, or many pig farms has been opened throughout the India with intensive farming of the pigs. Intensive farming, तो यहाँ आपको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। Now nutrient requirements regarding the pigs. Growing pigs are fed as per different growth phases depending upon their age and body weight. NRC
has suggested 6 growing stages. 3 to 5 kg body weight, the nutrient requirement will be different. 5 to 10 kg body weight, the nutrient requirement, then 10 to 20 kg, 20 to 50 kg, and 50 to 80 kg, and 80 to 120 kg. So the nutrient requirement is according to their body weight and age also. But the feeding the animals, pigs, according to body weight, it is better. So again there is a phase feeding. Phase feeding आप देख रहे होगे. Phase feeding is very important nowadays in case of animals to provide them a scientific feeding. आप ब्रायलर्स में भी देख रहे होंगे. According to the growth, there are 3 phases: pre-starter, starter, and finisher. Layers की भी तीन phases है. Pre-starter, that is starter, grower, and layer. Grower की भी 2-3 थी. 6 से 12 किलो, 12 से 6 से 12 वीक, 12 से 16 वीक, 16 से 18 वीक, 18 से फर्स्ट ले. ये ग्रोइंग फेजेस थे. तो फेजेस के हिसाब से the nutrient requirements are different. So when you are feeding the pigs, the body weight according to the age, there are different phases, and the nutrient requirements, they vary according to the phases. NRC has taken 6 growing phases. और अपने आप बिस है. बिस का Ranjan 1991, they have recommended only 3 phases: 5 to 12 kg, that is weaning. Weaning actually in case of pigs, the weaning is from 6 to 8 weeks. तो weaning में 12 किलो वजन हो जाता है. weaning के बाद 12 to 50 kg body weight, they are called growers. And from 50 kg to finishers, in case of Europe, the finisher body weight is 90 to 100 kg, but in case of India, it is 60 kg. So 50, 60, 70 kg, they are the finishers. 3 phases again fixed. They are starters. Starter means up to weaning. The body weight is around 12 kg. And 10 to 35 kg in case of indigenous breed or crossbred. 35 kg, 12 to 35 kg is a grower. It is a grower phase. And 35 kg to no. But 12 to 35 to 50 kg. 12 to 35 to 50 kg. It is a grower, and after 50 to 60, 65 kg or 70 kg, it is a finisher. So, according to the body weight, we have to provide 3 kind of the feed, concentrate. दाने 3 प्रकार के बनाएंगे अपन. स्टार्टर बनाएंगे, grower बनाएंगे, and finisher. The nutrient requirements are different. But if we'll go with NRC, so there will be different phases: 3 to 5 kilo body weight, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 50, 50 to 80, and 80 to 120. There are 6 phases, and the nutrient requirement will be different. तो यहाँ 6 दाने आपको बनाने पड़ेंगे. ठीक है. Suggestive phasing varies with respect to body weight, mainly due to difference in the performance under different agroclimatic condition and genetic makeup. तो जो nutrient requirements है, according to body weight and age and performance and agroclimatic condition and different genetic makeup, they varies. So the nutrient requirements has been. तो आपको कौन-कौन सा feeding system करना है? Whether you can go with NRC, whether you can go with BIS, or whether you can go with ICR. BIS and ICR are the nutrient requirement in Indian condition. Now, for calculation, the maintenance energy requirement is 110 kilocalorie DE per kg metabolic body size per day.
मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट निकालने के लिए जो जो फार्मूला लिया गया है, इट इज 110 किलो कैलोरी ऑफ डी पर केजी मेटाबॉलिक बॉडी वेट लिखिए, सो you will get the maintenance energy requirement, and maintenance energy requirement for calculating the protein of the fish is the formula. It is 8.97 gram of the crude protein kg metabolic body weight per day. कितना मेंटेनेंस के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए पिक को, प्रोटीन इस फार्मूले से आपने निकाला गया. एज द ग्रोथ पैटर्न, बॉडी कंपोजिशन, कार्कस ट्रेड of the Indian crossbred and indigenous pigs are different from those of allied exotic pigs. Eventually, the requirement will be also vary. जो जो क्रॉसब्रेड है और जो प्योर ब्रेड है, प्योर ब्रेड लैंडरेस और लार्ज वाट यॉर्कशायर, और जो क्रॉसब्रेड है ये लैंडरेस और देसी पिग का जो क्रॉसेस बने हैं, और लैंडरेस और लार्ज वाट वाइट यॉर्कशायर और देसी पिग के जो क्रॉसेस है, ये क्रॉसब्रेड इंडिया में अवेलेबल है. इनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा. अब देखिए आईसीआर 2013 ने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पिग दिए हैं. आईसीआर 2013 इज ए लेटेस्ट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर द पिग्स. वो क्या बोलता है? द क्रॉसब्रेड पिग्स, द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ क्रॉसब्रेड पिग्स दैट इज लैंडरेस इनटू नेटिव and large white Yorkshire into native, reared under different crossbred programs, they varied. उसने बोला है कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो क्रॉसब्रेड पिग्स के हैं आईसीआर 2013 के हिसाब से, एक वो है जिसमें कि जो इनका ग्रोथ रेट है इट इज अ लोअर टू मीडियम ग्रोथ रेट, और इसमें जो मैक्सिमम बॉडी वेट आता है स्टार्टर में इट इज 43 केजी, 43 केजी इन 8 मंथ. 8 मंथ में 43 केजी अगर बॉडी वेट आता है, सो दे आर लोअर ग्रोथ पोटेंशियल पिग्स. इनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अलग होगा. ऐसे क्रॉसब्रेड पिग्स जिनका कि 8 वीक में करीब 56 किलो बॉडी वेट आता है, दे आर कॉल्ड मीडियम ग्रोथ पोटेंशियल पिग्स. मीडियम ग्रोथ पोटेंशियल पिग्स, इनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अलग होगा. और ऐसे क्रॉसब्रेड पिग्स जिनका कि 8 मंथ में मतलब 32 वीक्स में करीब 110 किलो बॉडी वेट आता है, इट इज कॉल्ड हायर ग्रोथ पोटेंशियल पिग्स. तो क्रॉसब्रेड पिग्स जिनका 3 ग्रोथ पोटेंशियल है, लोअर ग्रोथ पोटेंशियल, मीडियम ग्रोथ पोटेंशियल और हायर मीट पोटेंशियल, इनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आईसीआर 2013 में अलग अलग दिया है. वो हम आपसे डिस्कस करेंगे. अब आप ये देखिए, ये द 19 क्रॉसब्रेड पिग्स अंडर लोअर टू मीडियम. ये देखिए बॉडी वेट 9 to 20 केजी, 23 to 28 केजी, और 28 केजी से 9 to 43 केजी. यहाँ 43 केजी देखिए कितने दिन में बन रहा है? 32 वीक में, मतलब 8 महीने में. 8 महीने में करीब 43 केजी बॉडी वेट आ रहा है. सो दे आर हैविंग लोअर ग्रोथ पोटेंशियल. सो दिस विल बी द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. इनका जो बॉडी वेट गेन आएगा ये 9 to 20 केजी में 155 ग्राम पर डे आएगा, और जो 23 से 28 किलो बॉडी वेट है इनका 224 ग्राम पर डे आएगा गेन इन बॉडी वेट. और जो 29 to 43 केजी बॉडी वेट के पिक्स है उनका जो गेन इन बॉडी वेट आएगा वो करीब 260 ग्राम्स पर डे आएगा. और फीड इनटेक ये आएगा 610 ग्राम इस वाले कैटेगरी में, और 1 किलो 120 ग्राम 23 to 28 वीक में, और 29 to 43 वीक्स में आएगा 1430 केजी बॉडी वेट. और जो गेन इन जो फीड एफिशिएंसी आएगी, फीड कंज्यूम अपन गेन इन बॉडी वेट, ये आएगा 3.98, ये आएगा 5 और ये आएगा 5. सो these will be the nutrient requirements.
nutrient requirements of the, in case of pigs, they are usually given in terms of DE, that is digestible energy, kilocalorie of digestible energy per kg of the diet. Again, the pigs, they are reared in the mass and they are fed in the mass. So the nutrient requirements, they are in terms of concentration in the diet. See the energy requirements. D, it can be also fed according to ME, metabolized energy kilocalorie per kg of the diet. So this will be the energy requirement and this will be the CP requirement. So if you are having the pigs whose growth potential is lower to medium, means in these phases these are the body weight gain. अगर उसका 9 से ये 8 से 16 वीक के एज में उसका अगर गेन इन बॉडी वेट पर डे 155 kg और 17 to 24 वीक में अगर उसका 220 और अगर 25 से 32 वीक में इनका 260 ग्राम अगर पर डे गेन इन बॉडी वेट आ रहा है, तो ऐसे पिग्स को आप ये वाला डाइट देंगे और इनकी एनर्जी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ये रहेगी अकॉर्डिंग टू AR अपना ICR 2013। तो ICR ने बोला क्या है कि आप अपने फॉर्म में देख लीजिए कि आपका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है पिग्स का। तो 3 प्रकार के पिग्स ग्रोथ पोटेंशियल मिलेंगे और ये पर्टिकुलरली क्रॉसब्रीड मिलेंगे। एक का जिनका की 8 वीक में 43 kg बॉडी वेट आता है, तो ये करीब लोअर ग्रोथ पोटेंशियल वाले पिग होंगे और इनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ये होगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये 56 वाला हैविंग मीडियम टू हायर ग्रोथ पोटेंशियल। यहाँ आप देखिए 8 से 16 वीक में 10 से 21 किलो के हो जाते हैं और 17 से 24 वीक में दे आर ऑफ 22 to 38 बॉडी वेट एंड 25 से 32 वीक मतलब 8 महीने में ये करीब 56 kg के हो जाते हैं। ठीक है, और गेन इन बॉडी वेट देखिए यहाँ 190 है, यहाँ 300 है, यहाँ 325 है। यहाँ गेन इन बॉडी वेट ज्यादा है और फीड टू गेन रेशियो दैट इज फीड एफिशिएंसी यहाँ 3.3, 4.5 और 5.4 की रहेगी। सो दे आर कॉल्ड मीडियम ग्रोथ पोटेंशियल पिग्स और इनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द फेजेस दिस विल बी अ डिफरेंट। मतलब आपको जो डाइट बनानी पड़ेगी यहाँ 3400 किलो कैलोरी और 22.7 और लाइसिन 0.9 और 0.70 बिथेन, इसका आपको डाइट बनाना पड़ेगा। सो दिस इज अ मीडियम ग्रोथ पोटेंशियल पिग्स। और हायर ग्रोथ पोटेंशियल पिग्स देखिए जिनका की बॉडी वेट आपको देखिए 110 जा रहा है। सो हियर यू सी द गेन इन बॉडी वेट। यहाँ गेन इन बॉडी वेट देखिए करीब 600 यहाँ आ रहा है और 640 यहाँ आ रहा है और 550 यहाँ आ रहा है। तो करीब इन जो ये वाले जो क्रॉसब्रीड मिलेंगे और यहाँ आपको प्योर ब्रेड भी और एलाइड पिग्स भी मिलेंगे। तो ये इनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है। सी द बॉडी वेट, मतलब 700 ग्राम गेन इन बॉडी वेट आ रहा है। तो ऐसे एलाइड क्रॉसब्रीड, ये क्रॉसब्रीड जो मिलेंगे जिसमें 75% मतलब इसमें फॉरेन का वो ब्लड है, मतलब जो लेंस और व्हाइट यॉर्कशायर का जो परसेंटेज है में इट इज अराउंड 75% एंड 25% जो ब्लड है वो इट इज अ नेटिव। तो ऐसे एलाइड क्रॉसेस इनका ग्रोथ इन बॉडी वेट गेन इन बॉडी वेट 700 ग्राम जा सकता है और 700 ग्राम्स में अगर गेन इन बॉडी वेट है तो आप 5 महीने में 100 किलो का पिग्स ले सकते हैं। सीधा ग्रोथ रेट 5 महीने में अगर आपने 700 ग्राम पर डे का है तो 7 तो 105 मतलब 700 ग्राम अगर है तो 15 into 700 grams it will give you 100 kg body weight of the pig. So see the growth potential of the pig, see the meat producing capacity of the pig, see the feed efficiency of the pig. It is highest amongst the any animals. तो ये पिग का
बोला जाता है पिग्स ना 3 वीक में अपना 5 गुना बॉडी वेट कर लेता है इनिशियल बॉडी वेट का, और करीब करीब 5 वीक में इसका जो एज है ना, इससे 10 गुना बॉडी वेट हो जाता है आपका इनिशियल बॉडी वेट का। सी द ग्रोथ पोटेंशियल और सी द मीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ द पिग। इसलिए पिग का रियरिंग और पैसे आजकल काफी जा रहे हैं। इट इज अ वेरी गुड फार्मिंग नाउडेज। पिग फार्मिंग एंड फिश फार्मिंग दे आर वेरी गुड एंड टू द फार्मर्स। और जब अपने आप पिग अपने आप ही वी आर rearing pigs in our farm also, और every Wednesday we are selling pigs to our sale counter, और सेल काउंटर में लाइन लग जाती है। अभी तो कोविड है, आपने देखा नहीं है, कोविड नहीं रहता तो एवरी वेडनेसडे देयर इज अ पोक इन आवर सेल काउंटर वेटरनरी कॉलेज जबलपुर, और इतना ज्यादा भीड़ लगती है कि आपको शटर बंद करने पड़ते हैं। सो वी कैन वी कैन we can have a very good pig farming nowadays. The pigs are reared under intensive farming system, and when they are reared under any intensive farming system, the 70 to 80% of the cost in intensive farming system is through feed. And if you are managing the feed, and if you are able to provide a scientific balanced feeding, so you can earn money like anything as a pig nutritionist. So these are the nutrient requirements. तो आपको देखना पड़ेगा, according to ICAR 2013, the pigs requirements can be of according to their growth potential. Lower to medium growth potential, nutrient requirements are different. For medium to higher growth potential, nutrient requirements are different, and for medium to higher, it is a different. So there are 3 kinds of growth potential in case of pigs according to ICAR nutrient requirement 2013. Now they have ICAR 2013. They have given the nutrient requirement for exotic pigs, landrace, and white Yorkshire under Indian conditions. See the body weight, it goes up to 75 kg. 75 kg, and gain in body weight it is 400. It is 500 grams per day, and feed efficiency it is 4.58 maximum in Indian condition. So pig can attain the average body weight 75 kg at, तो 8 हफ्ते में ये करीब करीब 75 किलो बॉडी वेट इंडियन कंडीशन में लैंड रेस और व्हाइट यॉर्कशायर दे रहे हैं. So ICAR have given different requirements according to the ages and body weight. So you have to prepare 3 kind of ration according to the body weight and age. One is ration from 8 to 16 weeks, and another ration is 7 to 24 weeks, and third ration will be and 25 to 32 weeks in case of exotic pigs according to ICAR 2013. Now indigenous pigs, ICAR 2013, they have given nutrient requirement for indigenous pigs also. See, average daily body weight gain was worked out 150 gram, 186 gram, and 260 gram. 150, 180, and 260 gram during 6 to 20, 20 to 30, and 30 to 60 weeks of age. ये इतने वीक्स में इनका जो गेन इन बॉडी वेट है इंडिजिनस पिग्स का. तो देयर आर 3 phases of growth in case of indigenous pigs: 8 to 20 weeks, 20 to 30 weeks, and above 30 weeks. And see the slaughter weight, it is in 8 months it is 40 kg for indigenous, 40 kg for indigenous. So see the nutrient requirement. Daily feed intake, and see the gain in feed efficiency.
feed consumed upon gain, it is around 4 to 5. And see the nutrient requirement. So you can prepare the different nutrient requirement according to the feed intake and body weight and age of indigenous pigs. So nutrient requirements जो ICR में 2013 ये लेटेस्ट है इन इंडियन कंडीशन, और आप कौन से पिक्स पाल रहे हैं, it is a देसी नेटिव पिक्स, so you can have a nutrient requirements and you can prepare a diet to the pigs. अब पिग्स में डिफरेंट एनर्जी प्रोटीन्स और डिफरेंट कैसे डाइट बनाते हैं ये आपको मैनुअल दिया गया है, जो अंकुर ने आपको मैनुअल दिया है. यू कैन सी दैट मैनुअल हाउ टू प्रिपेयर पिग स्टार्टर ग्रोअर एंड फिनिशर डाइट. सो यहाँ ICR 2013 में 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट दिए हैं. वन इज फॉर देसी पिग with different gain in body weight, then that is crossbred pigs. Crossbred pigs में 3 ग्रोथ रेट, एक लोअर, मीडियम एंड हायर ग्रोथ रेट, इनके हिसाब से न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है. एंड एग्जॉटिक, जो एग्जॉटिक आप पिग्स रख रहे हैं जिसमें कि 100% आपका लैंडरेस और व्हाइट यॉर्कशायर ब्लड है, सो it can be up to body weight of 75 to 100 kg within 8 weeks. So the nutrient requirements they have given according to different age wise or according to body weight wise. So you can provide the different feeds. एक बार एक डॉक्टर मेरे पास आया था, क्योंकि यहाँ पिक के बारे में लोगों को वही बहुत कम मालूम है, तो एक वेटरनरी डॉक्टर मेरे पास आया था कि सर हमको पिक का राशन बता दीजिए. तो मैंने उसको बताया कि डिफरेंट एजेस में डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और आपको पर्टिकुलरली 3 दाने बनाने पड़ेंगे, एक स्टार्टर दाना, एक ग्रोअर दाना, एक फिनिशर दाना, और अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट आपको देने पड़ेंगे. सो व्हाट इज दैट स्टार्टर? व्हेन वी आर फीडिंग द पिग्स from in intensive system, the first phase is called a starter phase. Starter phase, and the feed which is fed to the piglets, they are called creep feed. In early weaning of the pig, it is 6 weeks of the age in Western countries. In India, the pigs are weaned at 8 weeks under intensive feeding system. Weaning is advantage on weight basis rather than age basis as traditionally practiced. आपको जो weaning है वो weight basis पे करना है, not on age basis. In developing countries like India, phases or split weaning could be practiced in such a way that heavier pigs should be weaned at 5 to 6 weeks of age, followed by weaning of the lighter pigs at 8 weeks of age. इंडिया में जो होती है वो जो वीनिंग होती है, इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन द एज बेसिस कि 8 वीक हो गए तब इसकी वीनिंग कर लो. नहीं, आजकल क्या है कि जो लेटेस्ट एनिमल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बोलती है, वो बोलती है स्प्लिट वीनिंग करनी है आपको इन केस ऑफ पिग्स. एंड व्हाट इज दैट स्प्लिट वीनिंग? कि जो आपका एक साउ से 6 से 8 लीटर का अगर आपका लीटर साइज है, 6 से 8 पिगलेट है, मतलब एक साउ के पास, तो उस साउ में जो इनिशियल फीडिंग होगी वो सकलिंग होगी. और सकलिंग में होगा जो अच्छे पिग होंगे, जो थोड़ी एलाइट पिगलेट्स होंगे, वो जल्दी दूध पिएंगे और उनका जल्दी बॉडी वेट आ जाएगा. अब वीनिंग में करीब 8 से 12 किलो बॉडी वेट आ जाता है. तो जिनका जल्दी बॉडी वेट आ जाए उनको आप जल्दी वीन कर दीजिए, मतलब 5 to 6 वीक्स में कर दीजिए. और जिनका उस लीटर में लेट वेट आएगा जिन पिग्स का, उनको फिर 8 वीक में करिए. तो क्या होगा, उनको भी साउ का मिल्क पीने को मिल जाएगा एंड दे विल हैव अ सकलिंग रिक्वायरमेंट. तो
तो split weaning is nowadays we are practicing split weaning practice reduces the stress of negative energy balance of lactating sow, facilitates मतलब कहने का मतलब यह कि 6 से 8 पिगलेट है और उनका सकलिंग के द्वारा न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं पिगलेट्स को, तो इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिएंट्स का, बिकॉज 6 से 8 बच्चे हैं, तो जो साऊ होती है वो नेगेटिव एनर्जी या प्रोटीन बैलेंस में आ जाती है, और इसलिए स्प्लिट वीनिंग करना चाहिए कि जो एलाइड पिगलेट है वो पहले उनको अलग कर दे, तो उससे क्या होगा कि जो प्रेशर है साऊ में सकलिंग का वो कम हो जाएगा, एंड लेटर ऑन जो 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 कमजोर पिगलेट्स है उनको 8 हफ्ते में, so this is called split weaning. So you have to practice in starter this split weaning. क्रीप फीड क्यों है? Why it is called? जो पिगलेट को फीड दिया जाता है, it is a क्रीप फीड. क्रीप फीड it is not क्रीप फीड इसलिए बोला जाता है कि क्रीप फीड इज ए प्लेस. क्या होता है कि साऊ के साथ या गिल्ट के साथ बच्चों को रखा जाता है, और जब ये फरोइंग होती है तो जो बच्चे पैदा होते हैं, तो जब पिगलेट्स को फीड अलाउ किया जाता है, फीड दिया जाता है, तो वो जो फीड है वो साऊ खा लेती है, गिल्ट खा लेती है. तो उसकी माँ को क्या मालूम कि ये बच्चों का दाना है, तो दे यूज टू ईट द साऊ एंड गिल्ट, दे यूज टू ईट राशन गिवन टू द पिगलेट्स. तो क्या करते हैं हम कि एक कोना बना लेते हैं जहां साऊ रहती है, एक कोने में बल्लियां लगा देते हैं. वी यूज टू पुट बल्लियां इन कॉर्नर, और वहां क्या करते हैं कॉर्नर में आप उस पिगलेट को वी यूज टू प्रोवाइड फीड टू द पिगलेट्स, and that restricted area is called creep area, and ration given in that area is called creep feed. So creep feed का नाम creep केवल it is an area where the creep feed is given. It is not a name of any starter feed. That starter feed is called in case of nutrient requirement, it is a starter feed for the piglet. So starter feed, grower feed and finisher feed. So starter feed, they are given in a creep area, so oftenly they are called creep feed. ठीक है? अरे हुकी तो देते जाया करो बैठे बैठे. Piglet for faster growth rate and attain satisfactory weaning weight. Weaning मैंने आपको बताया कि ये करीब weaning आपको 8 हफ्ते में कर दी जाती है. Split weaning we are doing. Or piglet should have easy access to creep feed for ad-lib intake. Ad-lib मतलब पेट भर. Creep mixtures are introduced 17 to 14 days of age and they are fed till weaning. They contain 20% of protein and 3,265 kilocalories of hamid per kg of the diet, fortified with adequate minerals and vitamins. ये क्रीप फीड क्या है? इट इज नथिंग बट अ कंसंट्रेट मिक्सचर. ये दाना है. इट इज द कंसंट्रेट मिक्सचर ऑफ हाई एनर्जी एंड प्रोटीन वैल्यू. क्रीप फीड इज गिवन टू द पिगलेट्स फ्रॉम अप टू द वीनिंग, एंड we start giving it is generally given in case of intensive farming. In case scavenging or free range system, there is no input. Semi scavenging, whole day scavenging plus little bit input, and it is called semi scavenging system. Or in case of intensive farming, pre-starter starter ration, grower ration and finisher ration, and that starter ration is called creep feed. और creep feed क्या होता है? ये it is a high energy protein concentrate ration which is given to the pigs from 17 first week से या second week से 7 days or 15 days up to the weaning, up to the 8 weeks, which a concentrated mixture given to the piglets, they are called creep ration. They should contain 20% protein and 32-65 kilocalorie energy and fortified with good minerals and vitamins.
और इसमें क्या होता है कि एनिमल प्रोटीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्टार्टर फीड. Tree feed में animal protein source is very much important because animal protein sources they provide they provide essential amino acids, and that essential amino acids and the critical and limited amino acids, they are very much useful for the growth of any monogastric animal. So the quality of the protein in case of monogastric animals for good growth, it is very important. So you have to take care of the biological value of the protein. So you have to provide essential amino acids, critical amino acids, and limiting amino acids. And limiting amino acids for the growing pig, it is lysine and methionine. So you have to balance all this. And there is a concept of ideal protein. And ideal protein is a ratio of all the essential amino acids to the lysine. Lysine को यूनिट मानकर बाकी जो essential amino acids का ratio है, it is called ideal protein. And you have to consider the digestibility of the amino acids also. So गुड क्वालिटी प्रोटीन है. जब गुड क्वालिटी प्रोटीन की बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज एनिमल प्रोटीन. तो ये जो क्रीप राशन है, इसमें करीब करीब 50 to 60% प्रोटीन आनी चाहिए. कहाँ से? एनिमल प्रोटीन सोर्स से आना चाहिए. एंड गुड क्वालिटी एनिमल प्रोटीन सोर्सेज आर फिश मील एंड मीट मील. क्रीप राशन शुड बी मिक्स विथ ferrous sulfate at the ratio of 9:1 to prevent pigment anemia. पिगलेट्स में क्या होता है कि सकलिंग जो साउ है वो 6 से 8 पिगलेट्स को रियर करती है अप टू द वीनिंग, एंड इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स थ्रू सकलिंग्स. तो पिगलेट्स दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स थ्रू द सकलिंग. और दूध में क्या होता है कि आयरन की कमी होती है. एक तो दूध में आयरन कमी है, और एक साउ से करीब 6 से 8 पिगलेट दूध पी रहे हैं माँ का. So there will be a deficiency of iron in case of the pigs. And pigs, that is, they are reared in scavenging and semi-scavenging system, and particularly in case of intensive system, जहाँ की farm में soil नहीं है और there is no source of iron through soil. So the nutrient iron requirement in case of the piglet, it is very important, क्योंकि पिगलेट में 6 से 8 पिगलेट एक साउ को सकलिंग कर रहे हैं, एंड the milk contain less iron, so there will be anemia in the pigs because of deficiency of the iron in sow milk. So यहाँ आप उनको 9:1 आप ferrous sulfate, you can give them a ferrous sulfate. Piglets feed a creep ration attain 12 to 15 kg body weight in 8 weeks of age in land race and Yorkshire pigs, and around 9 to 12 kg, 10 kg in body weight in 6 weeks in land race and देसी क्रॉसब्रेड. जब क्रॉसब्रेड का वेट 9 से 10 किलो का हो जाए और अगर प्योर ब्रेड पाल रहे हैं आप, तो उसमें 12 से 15 किलो बॉडी वेट तक क्रीप राशन देना चाहिए. इसके बाद इनको ग्रोवर राशन देना. During the suckling period, piglets are more prone to anemia. A dose of iron injection, that is dextron, may be given to 4th and 14th day as sow's milk does not contain enough iron to take care of the piglets' requirement in first to second week in their age. Moreover, the intake of creep feed is inadequate at early ages. An alternate method of supplementing iron to the new pigs is a paint the sow's udder with liquid oral iron supplement, that is, अगर आप फेरस सल्फेट अगर इसका आप वो कर देते हैं, इनके साउ के अडर में पेंट कर देते हैं आयरन सप्लीमेंट्स का, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ आयरन टू द पिगलेट्स. तो 3 चीजें कर सकते हैं आपको, या फिर आयरन जो क्रीप राशन में
यू हैव टू टेक केयर ऑफ फेरस सल्फेट 9:1, आपको फेरस सल्फेट मिलाना चाहिए, या फिर आप डेक्स्ट्रोन इंजेक्शन दे दीजिए। एक पहला शॉट देना है आपको 4th डे पे और दूसरा शॉट देना है इट इज 14th डे। दो आपको इंट्रावीनस एडमिशन एंड इंट्रामस्कुलर देना, सॉरी आयरन देना है आपको, और अदरवाइज अगर आपको कुछ आयरन का सप्लीमेंट पे आपको इसको वो कर देना। सो दीज आर कॉल्ड क्रीप फीडिंग। तो पिगलेट की अगर फीडिंग अगर आती है तो आपको ये लिखना कि पिगलेट की फीडिंग में व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि the creep ration, they are the dry pre-starter feeds usually given to the piglets that are weaned in earlier from the sow and reared without the sow. Pigs are generally weaned at 6 to 8 weeks and piglets are able to consume the creep ration ये 7 to 15 days में आप दे देते हैं। Sow milk production at the peak is at 3 weeks of age, then it declines up to 8 weeks of age. So in early age, sow milk plus creep ration will give you the total nutrient requirement to the piglets. तो piglets का जो 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 राशन है वो दो चीजों से आएगा। वन इज फ्रॉम सकलिंग ऑफ द साउ मिल्क प्लस क्रीप राशन, दो चीजें आपको देना पड़ेंगे। एंड देयर इज ingredient composition of piglet that is creep ration। ये आपको इसका फार्मूला दिया हुआ है। सी अगर आपको बनाना है तो मेज 48 केजी ले लीजिए और सोयाबीन 9 ये फार्मूला है, और 100 केजी आप ये बना सकते हैं। तो 3 फार्मूले दिए हैं, फर्स्ट फार्मूला, सेकंड, थर्ड फार्मूला। ये है क्रीप राशन के, अगर आपको क्रीप राशन बनाना है, और इनका न्यूट्रिएंट कंपोजिशन देख लीजिए। तो दीज आर द फार्मूला, बने बनाए फार्मूले हैं। अदरवाइज इफ यू वांट टू मेक अ फार्मूला फॉर द क्रीप राशन, आप वहां देखेंगे, आप अपना उसको देखेंगे, आपको जो मैनुअल्स दिए गए वहां मैंने देखा बताया है, वहां मैंने बताया है कि स्टार्टर कैसे बनाना है, ग्रोअर राशन कैसे बनाना है, और फिनिशर राशन कैसे बनाना है। तो दिस इज स्टार्टर राशन। अनदर राशन इज जब पिगलेट्स का बॉडी वेट 12 to 15 केजी 8 वीक में हो जाए इन केस ऑफ प्योर ब्रेड, और 9 से 10 किलो का हो जाए इन केस ऑफ क्रॉस ब्रेड, तो इनको दूसरे राशन में डाल देना चाहिए। और ये राशन आप उनको खिलाना है 12 किलो बॉडी वेट से 50 केजी बॉडी वेट तक, एंड इट इज कॉल्ड ग्रोअर राशन, एंड इट इज कॉल्ड ग्रोअर राशन। On careful management of one pig attained 20 kg of the body weight, it would be thrifty in appearance and would almost pass the nutritionally critical period. Thereafter, it performs well a ration under optimum management condition. ये जो growing period है, मतलब 0 to जब तक उनका जो बॉडी वेट है, जैसे 1.5 किलो का क्रॉस ब्रेड है, वो 20 किलो बॉडी वेट, ये जो 20 किलो इनिशियल बॉडी वेट है, इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा आई है। पिग्स की अर्ली मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा आई है, इसलिए आपको क्रीप राशन और स्टार्टर राशन पे ध्यान आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। और यू हैव टू फीड एंटीबायोटिक आल्सो, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स, दे आर आल्सो फीड एडिटिव्स का भी बहुत आपको ख्याल रखना पड़ेगा व्हेन यू आर फीडिंग द पिग्स। एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें 20 हफ्ते तक, 20 किलो बॉडी वेट तक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत रिस्की रहता है पिग में। तो हियर यू विल सी द ग्रोअर राशन। आप 12 किलो बॉडी वेट से या 10 किलो बॉडी वेट से 35 किलो बॉडी वेट, अगर आपको देसी पिग है तो ग्रोअर राशन आपका 35 किलो तक रहेगा, और फिर 40 किलो तक आपका स्लाटर बेटा जाएगा। अगर आप मीडियम तक ले जा रहे हैं तो 56 किलो तक आपका बॉडी वेट रहता है, और हायर में आपका ये जाता है 75 केजी में। तो 35 to 60 केजी इट इज कॉल्ड ग्रोअर राशन। आप इसको 12 से
35 से 60 किलो तक आप खिला सकते हैं। 35 मैंने ये इसलिए है क्योंकि जो स्टार्टर है, अगर ये वाला इट इज मीडियम, और जो 3 ग्रोथ रेट में आपको मैंने बताए थे आपको, इट इज लोअर, मीडियम एंड हायर, लोअर, मीडियम और हायर, 3 ग्रोथ रेट के पिक्स थे। तो लोअर मीडियम के जो ग्रोथ रेट के पिक्स है उसमें जो स्लाटर वेट आता है इट इज 45 to 50 kg। तो आपका जो राशन आएगा वो 35 kg आएगा। और हायर ग्रोथ रेट है 50 kg तक आप ग्रोअर राशन खिलाएंगे। और इसके बाद फिनिशर राशन, और हमेशा फिनिशर राशन वो राशन है जिसमें कि एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी हो चुकी है और पूरी ग्रोथ रेट अटेंड हो चुका है। उसके बाद जो फिनिशर राशन होता है उसमें ग्रोथ होती ही नहीं है, तो केवल मेंटेनेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए, एनर्जी प्रोटीन मिनरल्स विटामिन दे आर ओनली फेड टू, उनको उनको फॉर मेंटेनेंस ओनली, क्योंकि उनके बाद जब वो उनकी एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाएगी तो ग्रोथ रेट एक एज के बाद ग्रोथ रेट आती ही नहीं। सो दे आर ओनली फेड। तो फिनिशर जो राशन होता है वो केवल मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है क्योंकि देयर इज नो ग्रोथ रेट, मतलब उसने सेक्सुअल, एनिमल ने सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड कर ली है और देयर इज नो फर्दर ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ जब हो ही नहीं रही तो उसके लिए न्यूट्रिएंट कहां जाएगा। सो दे आर जनरली फेड फॉर देयर बॉडी वेट, and that body weight means maintenance requirement. So they are the grower ration। और उसके बाद आपको फिनिशर राशन खिलाना है। फिनिशर राशन आपको 35 से 50 किलो के बाद से स्टार्टर वेट जिसका 60-70 है या 100 kg है, तो यू हैव टू फेड देम ऑफ फिनिशर राशन। तो ये 3 प्रकार के राशन होंगे एंड यू विल सी द कैसे, व्हाट इज द फार्मूला फॉर, बने बनाए फार्मूले हैं, आप इतना इतना सब मिला लीजिए, आपको फिनिशर राशन